جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے، پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ گھر میں ماحول یہ بناؤ جب شادی ہو نا اسی وقت سے، اب تو جن کے بچے بڑے ہو گئے اب وہ بہت مشکل ہے۔ جب شادی ہو تو پہلی رات بیگم کو جو آپ نے سب سے اہمیت کے ساتھ جو بات سمجھانی ہے، پہلے تو بیگم کو بتائیں کہ بیگم میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ذرا تمیز سے نا، لکھنؤ والوں کی طرح ایک دم نصیحتیں نہیں شروع کر دیں۔ وہ کہے کہ یار ابھی آگے بیٹھا ہے کوئی محبت کی باتیں کرو، آتے ہی ایک دم چلے 4 مہینے کی باتیں شروع کر دی، اس نے نصیحت شروع کر دی۔ تو آپ پہلے یوں شروع کریں کہ میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں۔ پھر اس کو آپ شروع میں ہی سمجھا دیں کہ دیکھو ہمارے گھر کا ماحول ہے، ویسے ہوگا تو نہیں لیکن چلو فرض کر لو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم جب بھی بات کریں گے نا آپس میں، ہمارا والیوم کیا ہوگا 25 تک بس برداشت کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ 25 سے اوپر کسی کا بھی والیوم ہوا تو وہ جرمانہ دے گا، صحیح ہے۔ اپنے بارے میں بھی 50 بھی بہت ہے، 100 تو ابھی تو ڈائریکٹ 100 پہ ہوتا ہے جا کے نا، گھما دیتے ہیں۔ یہ چیخو پکار اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، قرآن کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو پس کرو۔ میں بھی یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا والیوم بہت ہی دھیما اور بڑی تمیز سے، تو گھر میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن تکرار کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دے دے۔ سیکھنے والے ہیں نا ہم سب، کبھی ہو سکتا ہے میری بھی آواز اچھلتے کودتے ہوئے باہر آ جائے گلی میں اور چیخنے چلاتے ہوئے، آپ بولے اس دن تو بیان کر رہا تھا، تو بھائی ہم بھی سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں باتیں، لیکن بات اچھی کرنی چاہیے انسان کو۔ تو پہلی دن اس کو بتا دیں کہ ہمارا جو والیوم ہے نا وہ ہمیشہ 25 سے نیچے رہے گا، 25 سے اوپر نہیں۔ جتنا اب 100 کسے کہتے ہیں پورا گلا پھاڑ کے جو بات کرو نا، یہ تو 100 ہے۔ اس گلے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے 25 سے اوپر نہیں جانے دینا، بلکہ اس میں کچھ لگا بھی دیں، ایسا سسٹم جو اوپر نیچے ہو رہا ہو نا، وہ بتا رہا ہو، کوئی ایسی مشین لگا دیں۔ تو اس کے بڑے فائدے ہیں، اس سے جب بچے آپ کے پیدا ہوں گے وہ بھی کیسے؟ تمیز سے۔ ایسا خوبصورت ماحول بنے گا نا آپ کے گھر، جو لوگ آئیں گے آپ کے گھر وہ کہیں گے یار یہ گھر جنت ہے، یہ تو بڑے سکون والی زندگی ہے۔ اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، یہ چیخو پکار ہی ہر فساد کی جڑ ہے۔ ہر فساد کی جڑ کیا ہے؟ چیخو پکار۔ بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ گدھے کا مسئلہ کیا ہے؟ بات غلط نہیں کرتا، تمیز سے نہیں کرتا بات۔ گدھے کی باتیں صحیح ہوتی ہیں، اسٹائل غلط۔ اب گدھے کو گھاس چاہیے، بلی کو چاہیے بھوک میاؤں میاؤں، بس سمجھ جاتا ہے آدمی اس کو بھوک لگ رہی ہے۔ گدھے کو 2 منٹ کا کام ہے آپ سے لیکن اس کے لیے اسٹائل دیکھو، پہلے پوری آواز پھیپڑوں میں بڑھے گا، بور کے ہاں ایسے نکالے گا۔ تو گدھا کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اس کی بات غلط نہیں ہوتی، اسٹائل گدھے جیسا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑی سی بات کرے گا آدمی کہے گا اللہ کا واسطہ چپ ہو جا تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ تھر میں گدھے تھے نا جو ہم نے سونے نہیں دے رہے تھے رات کو، تو یہی اسٹائل گھروں میں لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو گھر میں بچوں کو کیا سکھانا چاہیے؟ تمیز، ادب، صحیح ہے نا۔ تو چیخنے چلانے کا گھر میں اگر ماحول ہوگا تو یہ بڑا مسئلہ، لیکن یہ شروع میں ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہ ایک آدمی، 2 بندوں نے شادی کی، 2 بہنوں سے، 2 بھائیوں نے 2 بہنوں سے شادی کی، 6 مہینے گزر گئے، ایک کی بیوی بڑی تمیز سے، بہت ادب احترام، دوسرے کی بیوی کنٹرول میں ہی نہیں۔ تو اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یار یہ تیرا اس پہ اتنا روب ہے، ایسے تمیز سے بیٹھی رہتی ہے تیرے سامنے، میری والی کا تو روب ہی نہیں۔ اس نے کہا میں پہلے دن آیا تھا نا، میں نے ایک گلاس سامنے تھا اس کو ایسے کک ماری نا کہ کس کمبخت نے گلاس ادھر رکھا، پھر گیا ادھر بلی کی گردن مڑوڑ دی، یہ کر دیا، ایسے بھٹو بچوں اسٹائل سے آئے۔ وہ ڈر گئی نا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے، تو بڑی تمیز سے۔ ویسے آج کل خواتین ڈرتی نہیں ہے اس اسٹائل سے، یہ میں بتا دوں، یہ پرانے دور کی پرانی باتیں۔ آج کل آپ جائیں گے نا، ایک گلاس اٹھائیں گے، وہ اٹھا کے لوٹا مارے گی آپ کے سر پہ کھولا لے کے بھاگ جائے گی وہ، اور صحیح کرے گی۔ ظاہر ہے یہ کون سا اسٹائل ہے آنے کا؟ آپ کو چاہیے آپ آ کے اسے اسی اسٹائل میں بات کریں کہ بھائی میری آپ سے کل شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو اب یہ 6 مہینے بعد یہ آیا اور اس نے بھی گلاس کو کک ماری نا، تو بیگم بولتی ہے اب ان ڈراموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ شروع میں
अगर कंट्रोल हो जाए मामला तो ठीक है, बाद में तो सब चीखना चिल्लाना फिर तो फोड़ो, सही है ना, वो चीखे आप भी चीखो, वो दरवाजा थोड़ा सा बंद करे आप उठा के खोलो और स्पीड से बंद करो। हमारे हजरत ने एक वाकया सुनाया, इस तरह तलाक हुई है, शौहर घर में आया थका हुआ, तो बेगम इंतजार कर रही थी कहीं लेट हो गया था, ये उसको गुस्से में बैठी हुई थी बेगम। तो जब ये आया है ना कमरे में, तो इसने दरवाजा धाड़ करके बंद किया ना, बेगम का मूड ऑफ था तो इसने को गुस्सा आया, इसने दरवाजा धाड़ करके बंद किया। बेगम ने कहा मुझे तपाने के लिए इतनी जोर से दरवाजा बंद किया, दोबारा और तेज बंद करो। ये भी बस सींग नहीं थे इनके, हरकतें तो वही बैल वाली। तो पुराना वाकया है, उनको नहीं पता चलेगा। इन्होंने क्या किया, खोला और फुल स्पीड के साथ दौड़ करके और जोर से, फिर लड़ाई शुरू और तलाक तक नौबत आई है। किस बात पे कि जी दरवाजा जोर से, इस पे उनके दरमियान तलाक हो गई। तो ये है इंसान जब गुस्से में बेकाबू हो जाता है, और अब भाई उसने अगर बोल दिया था जोर से बंद करो तो कुछ और बोल देते ऐसे मौके पे, बोले बेगम ये मुनासिब नहीं है, मैं शादी हुई थी इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं और आप क्या कह रही हो। इस्लाम ने बेहयाई को रोकने का जो कानून बनाया है वो हमसे पूछ के नहीं बना, और कहा सबको फॉलो करना पड़ेगा, समझ में आए तो भी, नहीं समझ में आए तो भी। फॉलो नहीं करोगे तो आखिरत में उल्टे लटके हुए हो, मारूंगा मैं, सजा दूंगा। वो कानून क्या है? नंबर 1, औरत को इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, सबसे पहला हुक्म। खवातीन कहती है मर्द अपनी निगाहों में हया पैदा करे, हमें पर्दे का पाबंद बोलो भाई ना करें। ये अल्लाह से लड़ाई है या नहीं है? जो खवातीन इस किस्म की बातें कर रही है, इसका मतलब आप किससे लड़ रही हो? अल्लाह से लड़ रही हो। अल्लाह ने कहा मर्द को भी आंखों में हया पैदा करनी पड़ेगी और आपको भी अपने लिबास में बोलो भाई हया पैदा करनी पड़ेगी। औरत का लिबास मुकम्मल होना चाहिए। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, घर से बाहर निकलते हुए बुर्का या बड़ी चादर, कोई भी ऐसी चादर जिससे जिस्म ढक जाए, ये होनी चाहिए। इसके बगैर औरत को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। बल्कि इससे भी पहले वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, औरत का असल जिम्मेदारी घर की 4 दीवारी है। जॉब औरत की असल जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए घर का निजाम खराब हो जाएगा। घरेलू निजाम खराब होने से आपको नुकसान हो ना हो, आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो आप अपने मफाद के लिए कानून बना रहे हो और अल्लाह आने वाली नस्लों को देख रहा है। मुझे अगर अपने घर में माँ की मोहब्बत ना मिली होती, माँ का टाइम ना मिला होता, तो जो अल्लाह ने टूटी फूटी मुझ में सलाहियत पैदा की वो नहीं होती। बच्चा माँ की गोद में घर में रह के बड़ी अय्याशी से पलता है। औरत अगर जॉब करेगी तो पहली बात बच्चा पैदा नहीं होगा, वो नहीं करेगी। इंसानों को हयात की नेमत बोलो ना भाई नहीं मिलेगी। माँ बाप का सबसे बड़ा एहसान ये है कि वो आपकी जिंदगी का सबब बनते हैं। अगर वो नस्ल रोक लेते 2-3 के बाद तो आपको जिंदगी ना मिलती, तो 4थे 5वें 6ठे 7वें नंबर पे पैदा हो रहा है। हयात नेमत ये घरेलू औरत के लिए तो मुमकिन है, घर से बाहर निकलने वाली खवातीन के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरा, जो पैदा हो जाएंगे उनको माँ की सही ममता नहीं मिलेगी। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि बच्चा पालना आसान काम नहीं है, टाइम मांगता है बच्चा। मलेशिया वाला हिसाब होगा, उधर होटल में फिश बना के दे रही है और इधर बच्चे को भी वॉकर में झूला दे रही है, हिला रही है, ठीक है ना। जॉब भी कर रही है और बच्चा भी पाल रही है। इसको आजादी कहते हैं। वाह रे वाह, मर्द जॉब कर रहा है तो किसी को नहीं पाल रहा, औरत जॉब करके अपने बच्चे को भी पाल रही है। तो ये औरत को बर्बाद कर दिया ना, ये आजादी है बर्बादी है? उसको टेंशन में डाल दिया आपने। यार उसको आजाद करो भाई, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा काम सिर्फ इसको पालना है, और इसका सारा खर्चा किसके जिम्मे है? मर्द के जिम्मे। तो बच्चे को एहसास होता है कि ये मेरी माँ है, ये हर वक्त मुझे गोद में रखती है, और ये मेरा पाप है कि मेरी माँ जो मुझे इतने मजे से बाल रही है, वजह उसकी ये कि शेल्टर देने वाला कौन है? उसे बाप है मेरा। घर और लिबास खुराक का खर्चा कौन उठा रहा है? बाप। तो दोनों से रिश्ता मजबूत होगा ना। अंग्रेजों के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अंग्रेजों के बच्चे क्या होते हैं कि माँ की ममता में ही उनको बाप भी नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा ये फादर वाला रिश्ता है, मदर वाला रिश्ता है, और फादर मार्केट से क्या है? शार्ट। अगर मार्केट में है भी तो ये कमबख्त है क्यों कर क्या रहा है मेरे लिए? ये है भाई। तो रिलेशन गया दिल लेने फादरत के साथ। तो ये नस्लों को नुकसान होता है। बच्चों के हुकूक पर तो बड़ी बातें होती हैं। बच्चे है ना,
बच्चों के हुकूक पर तंजीमें, बच्चों के हुकूक पर तंजीमों को चाहिए सबसे पहले माओं को पाबंद बनाए कि बच्चों को पैदा भी करो और घर में रह के उनको पालो भी। बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत माँ की है जो घर में रहे। हमें तो याद है हम स्कूल से घर आते थे ना, हमारी वालदा कहीं पड़ोस में गई हुई है मिलने के लिए, तो घर आते ही एकदम सबसे पहले पूछते थे अम्मी कहाँ है। अब जैसे किसी बहन भाई ने बता दी अम्मी नहीं है, अभी वहां काम से गई है, बच्चे का तो मीटर शार्ट हो जाता है, अम्मी चाहिए भाई। वो बताते हैं अब्बू है, अब्बू नहीं भाई, अब्बू का क्या करना है यार, भाई भाई है घर में, बहन है ना भाई, अम्मी कहाँ है। हमें अपना वो जमाना याद है, उठा उठा के ना फिर प्लेटें फेंकते थे हम, ऐसे बर्तन उठा उठा के, कहाँ गई। और आप देख लो अपने बच्चों को भी, घर आते ही सबसे पहले क्या पूछते हैं, पूछते हैं कि नहीं पूछते, अम्मी कहाँ है। अम्मी नहीं मार्केट से शार्ट हो सकती भाई बच्चे के लिए, वो मार्केट से शार्ट हुई, बच्चे का मीटर क्या हो गया, शार्ट। बच्चा अपनी माँ की गोद को खुशबू से पहचानता है, बच्चे को किसी औरत की गोद में उठाए ना वैसे ही हो नहीं मानेगा, जब तक उसकी माँ चाहे वो पसीनों की बदबू आ रही है उसमें, और दूसरी माँ खुशबुएं लगा के नहा धो के गोद में उठाए, बच्चे को सुकून कहाँ मिलेगा। वो जो बदबूदार माँ है ना, जिसमें पसीने की बू आ रही है, लहसुन और प्याज की बू आ रही है, बच्चे को उसकी गोद में सुकून मिलेगा। ये नेचर है, इस नेचर को आप तब्दील नहीं कर सकते। तो इस्लाम ने दूसरा कानून क्या बनाया भाई, माँ कहाँ रहेगी, औरत के लिए घर की चार दीवारी। हाँ ये जरूर है कि मर्द को पाबंद किया है कि घर मुनासिब लेके दो, जो खुट्टे से बने हुए होते हैं ना धूप ना हवा ना रोशनी, ये जुल्म है औरत के ऊपर। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़म्बी व वस्सिअली फी दारी, अल्लाह मेरे घर को क्या कर दे, वसअत दे। तो घर वसी होना चाहिए जितनी अल्लाह ने गुंजाइश दी है। बाज़ दफा मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, मैं हैरान होता हूँ भाई कैसे रह रहे हो यार, ना धूप ना रोशनी ना हवा, कोई इंतजाम ही नहीं है। हमारे यहाँ इसको तो बहुत फोकस किया जाता है, घर में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा हो, इतने कमरे और डबल मंजिला और ये और वो, टोपी ड्रामे फजूल किस्म के बेकार। सबसे पहले घर में खासियत ये है कि धूप और रोशनी का नेचुरल, ये ट्यूबलाइटों की रोशनी नहीं, धूप का और हवा की वेंटिलेशन का इंतजाम, और कुछ चलने की जगह हो उसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए। नहीं आ रही समझ, बेशक गरीब आबाद में चले जाओ, शहर की आबादी से थोड़ा दूर चले जाओ, लेकिन रहने की जगह क्या होनी चाहिए, कुशादा। तो हाँ कोई मजबूरी हो तो वो अलग बात है, बाज दफा मर्द की आमदन कम होती है, घर चलाना मुश्किल होता है, तो फिर औरत उसका साथ दे सकती है। मजबूरी के हकाम क्या है अलग है, या किसी ऐसे शोबे में औरत जॉब कर रही है जो है ही खवातीन का, अब गायनी की डॉक्टर तो औरतें ही बनेगी ना, नहीं आ रही समझ में बात, तो वो एक अलग चीज है, उसमें अपने जाती मफाद को कुर्बान करना पड़ता है इज्तिमाई मफाद की खातिर, लेकिन वो महदूद ही है। असल कुरान ने औरत का वजीफा बयान किया, करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में करार पकड़ो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप खवातीन को अपने साथ सफर पे ना लेके जाएं,